براہ راست آپ کو لیے چلیں گے، کراچی میں اسد عمر اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آج جو ہم نے فیصلے کیے اس کے مطابق پیٹرولیم ڈویژن نے ہمیں یقین دہانی دلائی ہے کہ گیس کی سپلائی جو ہے، جو پہلے بھی بڑھائی جا چکی تھی، کہ الیکٹرک کے پاس معاہدے کے مطابق 190 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ گیس روزانہ فراہمی کرنا جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اس کو بڑھا کر 240 تک لے جایا گیا ہے۔ پہلے 270 بھی گئی تھی، اس کو 240 ہے، اس کو دوبارہ بڑھا کر 290 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ پر لے جایا جا رہا ہے، یعنی 100 ملین اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ روزانہ اضافی گیس دی جائے گی کہ الیکٹرک کو۔ اس کے ساتھ یہ الیکٹرک جو بن قاسم پہ ان کے یونٹس ہیں، جو ڈیول فائرڈ یونٹس ہیں، یعنی ایک سے زیادہ ایندھن سے وہ چل سکتے ہیں، ان یونٹس میں سے کچھ یونٹس شروع میں اور تمام یونٹس کچھ دن کے بعد فرنس آئل کے اوپر چلائے جائیں گے۔ فرنس آئل کی جو سپلائی ہے اس کو پیٹرولیم ڈویژن نے بڑھا دیا ہے، ان کے پاس اس وقت جو ہے پہلے سے زیادہ فرنس آئل آ رہا ہے اور مزید اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں، بالکل واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ ان فیصلوں سے کہیں یہ نہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ غلطی جو تھی وہ کوئی پیٹرولیم ڈویژن کی تھی۔ اس کے لیے ایک الگ فورم ہے، نیپرا ریگولیٹر ہے اس سیکٹر کا۔ نیپرا نے اپنی پبلک ہیئرنگ بھی کراچی میں مکمل کی ہے اور چیئرمین نیپرا آج بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ کہ کس کی غلطی سے یہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا وہ نیپرا الگ سے ایک فیصلہ دے گا۔ ہمارا مقصد آج صرف اتنا تھا کہ کراچی کے اندر جو غیر معمولی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جو شیڈیول لوڈ شیڈنگ کے علاوہ ان شیڈیول غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کو فی الفور کیسے ختم کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے گیس سپلائی کا اضافہ کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ ایس ایس جی سی کے ایم ڈی بھی یہاں پہ موجود ہیں، کہ الیکٹرک کے ایم ڈی بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور فرنس آئل کی جو سپلائی ہے اس کے اندر اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ دونوں چیزیں ہونے کے بعد کل سے کراچی میں کوئی بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ جو کراچی کے تقریباً 3/4 آبادی پر مشتمل علاقے ہیں جہاں شیڈیول لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی پہلے، وہی صورتحال میں ہم واپس چلے جائیں گے۔ اب ہم آگے کے لیے کہ ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو، یہ بڑی بدقسمتی بات ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کے اندر بجلی کی جو پیداوار ہے اس کے اضافے کے لیے اربوں ڈالر کے کانٹریکٹ سائن کیے جا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلے نہیں کیے گئے کہ وہ جو بجلی آئے گی تو باقی پاکستان کی طرح کراچی کس طریقے سے اس بجلی سے مستفید ہو سکے گا۔ تو اس کے اوپر جو ہم نے فیصلے پچھلے چند ماہ کے اندر کیے ہیں ان کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگلے سال گرمیوں سے پہلے، یعنی 2021 کی گرمیوں سے پہلے 550 میگا واٹ اضافی بجلی کراچی کے لیے مہیا ہوگی۔ اس وقت تقریباً دن پہ منحصر ہوتا ہے 2900، 3000، 3100 تک جا سکتی ہے۔ تو اس کے اندر 550 میگا واٹ کے اضافے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمجھیں تقریباً 18% اضافہ کیا جائے گا کراچی میں بجلی کی فراہمی کا اگلی گرمیوں سے پہلے۔ پھر اس سے اگلا سال جو آئے گا، اس اگلے سال کی یعنی 2022 کی گرمیوں سے پہلے 800 میگا واٹ مزید اضافہ کیا جائے گا، یعنی 550 میگا واٹ اگلے سال اور 800 میگا واٹ اس سے اگلے سال۔ تو مجموعی طور پہ 2022 یعنی 2 سال بعد کی گرمیوں سے پہلے 1350 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کراچی میں اضافہ کیا جائے گا۔ پھر تیسرا
और ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर फैसले हो चुके हैं। इसमें से आप समझ लें तकरीबन 90% जो मैं फराहमी की बात कर रहा हूँ, इस पे फैसले हो चुके हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने भी फैसला कर दिया है, काबीना ने भी फैसले कर दिए हैं पिछले चंद माह के अंदर। 2023 की गर्मियों से पहले 800 मेगावाट मजीद फराहमी में इजाफा किया जाएगा, यानी 550 मेगावाट अगले साल, 800 मेगावाट उससे अगले साल और 800 मजीद मेगावाट उससे अगले साल। तो आज जहां पर हम खड़े हैं वहां से 2023 की गर्मियों से पहले 2150 मेगावाट, या आप समझ लें कि इस वक्त जितनी बिजली की फराहमी कराची को है उससे 70% इजाफा कर दिया जाएगा। ये तमाम फैसले हमने इसलिए किए तमाम फैसले, और जिस सोच के साथ हम फैसला साजी कर रहे हैं वो ये है कि के इलेक्ट्रिक एक निजी इदारा जरूर है और कराची के बिजली के निज़ाम को पिछली हुकूमतों ने उसमें निजकारी जरूर की है, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज किया गया है, कराची प्राइवेटाइज नहीं किया गया। कराची के अवाम की जो जिम्मेदारी पाकिस्तान की वफाक के ऊपर है वो जिम्मेदारी से दूसरे सर पे नजर नहीं किया जा सकता। तो यही सोच के साथ, इसी जज्बे के साथ हमने अभी तक जो फैसले किए हैं वो आपसे बताए। इंशाअल्लाह ताला गाहे बगाहे इसमें जिस तरीके से आगे पेशरफ्त होगी उस पेशरफ्त के साथ भी हम आपको आगाह रखेंगे। केई के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे साथ खड़े हुए हैं और इनको मीटिंग में आज मैंने भी और गवर्नर साहब ने भी ये पैगाम दिया है कि हम आपकी भरपूर मदद करना चाहते हैं कि आप कराची के अवाम के मसाइल हल करें, लेकिन अगर इस तमाम मदद के बावजूद आप कराची के अवाम के मसाइल बिजली के ताल्लुक से हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे ताकि कराची के अवाम के साथ ज्यादती न हो। इसी जज्बे के साथ उम्मीद है अब सब मिलकर काम करेंगे। एक दफा फिर आपका शुक्रिया और एक दफा फिर जो पीछे खड़े हुए उनसे फिर एक दफा दरख्वास्त, खुदा का वास्ता, वजीर आजम बार बार समझा चुके हैं, बार बार अपील कर चुके हैं, आप वजीर आजम के अगर कारकुन हैं, अगर आप वाकई में दिल से वजीर आजम को अपना लीडर मानते हैं तो खुदा का वास्ता फासला पैदा करें। अच्छा, असल में सवाल आपसे ये है कि जो इस वक्त लोड शेडिंग होती रही है उसका जिम्मेदार बाकी हुकूमत जिम्मेदार है कि इलेक्ट्रो इसके साथ ले लें कि जो लोग करंट लगने से हलाक हुए हैं उनको किस तरह से कंपनसेशन किया जाए। सर जो सवाल पूछा गया कि इसके जिम्मेदार कौन है जो लोड शेडिंग हुई, ये मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ कि रेगुलेटर जो है नेपरा उसने अवामी हियरिंग भी कर ली है और उन्होंने आज की मीटिंग में हमें बताया है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट जारी कर देंगे जिसके अंदर वो ये तयन करेंगे कि कौन जिम्मेदार था, और जाहिर है वो जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर जो भी एक्शन बनता है वो एक्शन भी उसके अंदर दिया होगा। 14 अमवात हुई थी पिछले साल करंट लगने से, जबकि इस साल भी कई अमवात हुई हैं। के इलेक्ट्रिक जो है वो उसको कहा था नेपराने के इनको मुआवजा दे, इनके लवाहिकीन की सफाई करे, लेकिन 50 हुई थी सिर्फ नोटिस की कार्रवाई, उसके अलावा के इलेक्ट्रिक अपनी हकदर्मी से बात नहीं आती। सर मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, नेपरा अपना फैसला करे, अगर नेपरा को अपना फैसला इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस पर अमल दरामद करने के लिए वफाक से कोई भी मदद चाहिए तो वो मदद हम फराहम करने के लिए तैयार हैं और उम्मीद है कि सिंध की हुकूमत भी यही ऑफर करेगी। हमने नेपरा को असद उमर साहब जो वायदा हुआ है उसको कब अवाम के सामने पेश किया जाएगा या वो कौमी राज है? मुआहिदे को आप अवाम के सामने कब लाएंगे जो के साथ हुआ है? ये गवर्नर सिंह से एमडी के इलेक्ट्रिक से पहले मुलाकात हुई, इन्होंने यकीन दहानी कराई 48 घंटे में हो जाएगी, लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। क्या ऐसी चीज़ है कि हमें, आप मिनिस्टर हैं, गवर्नर सिंह है,
वफाक में आपकी हुकूमत है, इतनी बेबसी है कि इलेक्ट्रिक को आप लोग टेक ओवर नहीं करते, लोग मर रहे हैं। कराची ने इतना बड़ा मैंडेट आपको दिया है, वज़ीर आज़म एक्शन ले रहे हैं, उसके बावजूद भी यकीन दहानी कराई जा रही है। कौन सा ऐसा मुआहदा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है चीज़ों से? तो पहले मैं समझ गया सवाल, मैंने उस दिन असेंबली के फ्लोर पे भी इस बात का जवाब दिया था। मायदा के इलेक्ट्रिक के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं किया, निजकारी के इलेक्ट्रिक की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं की। ये 15 साल पुराने मसाइल हैं। हम इनको एक बड़ा सादा सा पैगाम दिया है जो आपने भी सुन लिया, मैंने लाइव टेलीविजन के ऊपर भी कह दिया। मुझे पहले का पता नहीं, लेकिन या के इलेक्ट्रिक जो है हमारे साथ मिलके कराची के अवाम के बिजली के मसाइल हल करेगी, और जिस सूरत में हम इनकी भरपूर मदद करने को तैयार हैं। और या के सामने सर मुआहदा कभी सामने सर नहीं देखो, अच्छा ये मायदा पता नहीं क्यों नहीं सामने आया है। सर अगर इसकी जरूरत पड़ी तो जरूर कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि 15 साल से के इलेक्ट्रिक चल रहा था हमारी हुकूमत आने से पहले, मसला हमने हल करना है, वो जिम्मेदारी वफाक की है, उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। वो हम टेक ओवर करके करते हैं, हम इनसे काम करवा के करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी, मोनी सभी साहब बताइए। डाइस पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नेपरा ने जो ऑर्डर किया था उसकी कंप्लाइंस के अंदर मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बता रहा हूँ कि तकरीबन सारे लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है, मगर ये मुनासिब बात नहीं है कि इसको इस तरह से इसकी तशहीर की जाए। और हमने नेपरा के पास उसकी रिपोर्ट जमा भी करा दी है। और मैं आपको मतलब ये, क्योंकि ये करंट के वाक़यात जो है देखिए ये घरों में भी हो रहे हैं और ये ऐसी जगह पे भी हो रहे हैं जहाँ पे कि हमारे ना लोग होते हैं, तो इस किस्म के ऐलानात जो है ना वो मुनासिब नहीं है। लेकिन हम जिम्मेदार वो सवाल पूछो। 35,000 का मुआवजा तय हुआ था कि 35,000 कैजुअल्टी के दिए जाएंगे। अभी असद ने बड़ी तफसील से आपको सारी चीज़ों से आगाह किया, और आज मीटिंग में नरमी गर्मी भी रही, एक दूसरे की मदद करने का इरादा भी किया गया, और ऑर्डर्स भी उसके हुए हैं। ये जो ओवर बिलिंग का मामला है, इसे मैं खुद नेपरा के पास लेकर जाऊंगा और इसकी ऑडिट करवाएंगे। और ओवर बिलिंग की अगर ओवर बिलिंग निकली तो ये के इलेक्ट्रिक के सीईओ खड़े हैं, ये अब रिफंड करेंगे उसके पैसे। अगर ओवर बिलिंग निकली तो हम नेपरा से इसका ऑडिट करवाएंगे। मेरी बात पूरी सुन लें। मैं आखिर में मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, पूरे यहाँ पे जो सारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं कई दिनों से, पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कराची की आवाज़ बनकर इस मामले को उठाया। और दूसरी बात कि अब आप इस बात पर भरोसा रखें कि वफाक ने बड़ा सीरियसली आज इस बात को देखा है। वज़ीर आज़म की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है, 4 वफाकी वज़रा इसके अंदर शामिल रहे, गवर्नर इसके अंदर शामिल थे, कई के सीईओ इसके अंदर शामिल थे, सुई गैस के एमडी इसमें शामिल थे, नेपरा के चीफ इसमें शामिल थे। और आज बड़े हाई लेवल पे इस मीटिंग का अख्तिताम हुआ, जिसका ऑफिशियली जिसके मिनट्स की गई है जिसको, तो इस पे आप हम पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह जितना दर्द कराची का आपके दिल में है, उतना ही दर्द वफाक में इमरान खान के दिल में भी ये दर्द महसूस हो रहा है। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आज इस धरने का अख्तिताम करें, कुछ टाइम दें। जो टाइमलाइन सेट हुई है आज असद उमर की मौजूदगी में, गवर्नर की मौजूदगी में जो कमिटमेंट्स हुए हैं, उन्हें थोड़ा टाइम दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पीर से आपको गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची में नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस का, खास तौर से राजा अजहर आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप गवर्नर सिंध और असद उमर गुफ्तगू कर रहे थे। अहम इजलास हुआ कि इलेक्ट्रिक के मसले पर बात हुई, कराची में जो लोड शेयरिंग है उस मसले पर बात हुई, और उन्होंने अहम ऐलान किया कि कराची में कल से गैर एलानिया लोड शेयरिंग नहीं होगी। पीटीआई की जानिब से के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर जो धरना दिया गया था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। आपको बताएं कि असद उमर गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जहां लोड शेयरिंग नहीं होती थी अब वही सूरत हाल वापस आ जाएगी। इन फैसलों से ये नतीजा अखज़ ना किया जाए कि गलती पेट्रोलियम डिवीज़न की है। चेयरमैन नेपरा से आज जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा
कि किसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। जिम्मेदारों का हम तयन करेंगे, इसका फैसला नेपरा की जानिब से दिया जाएगा।